الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ. محترم دوستو اور بزرگوں، گزشتہ 4 جمعوں سے خلفائے راشدین المہدیین کے فضائل و مناقب اور ان کے حالات زندگی پر مختصر گفتگو اس نشست کے اندر ہو رہی ہے. آج 21 رجب المرجب ہے. کل آئندہ 22 رجب المرجب امیر شام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. اسی مناسبت سے آج حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر مختصر بات چیت اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو حضور کے برادر نسبتی ہونے کا شرف حاصل ہے. ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور سیدنا ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں. تو جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا سسر ہونے کا شرف حاصل ہے، وہاں پر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہونے کا شرف حاصل ہے. جہاں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو آقا نامدار تاجدار رسالت سرور کائنات محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی اور سالہ ہونے کا شرف حاصل ہے، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور کے برادر نسبتی اور سالہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بعض لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام دشمنی کا چرچا کرتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی گفتگو کر کے حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور منقبت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام قبول کرنے کے بعد جہاں دوسرے صحابہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار تھے، وہاں حضرت ابو سفیان اور ان کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اور دین اسلام کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان اور ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کی قیادت اور سرکردگی میں دو غزوات کے اندر جان کی بازی لگا کر شریک ہوئے۔ ایک غزوہ کا نام غزوہ حنین ہے اور دوسرے کا نام غزوہ طائف ہے۔ غزوہ حنین کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان الفاظ میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 10ویں پارے سورہ توبہ کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مسلمانوں، ہم نے بہت سے موقعوں پر تمہاری نصرت اور مدد کی، اور حنین کے دن بھی ہم نے تمہاری نصرت اور مدد کی، اور اس دن اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر سکینہ اتارا، ایمان والوں پر بھی سکینہ اتارا، اور ایک غیبی لشکر مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیجا۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی پر سکینہ اتارا اور ایمان والوں پر بھی سکینہ اتارا۔ ان ایمان والوں میں 12,000 کا لشکر تھا۔ 12,000 کے لشکر میں جہاں ابو بکر صدیق تھے، جہاں عمر فاروق بھی تھے، جہاں عثمان غنی بھی تھے، جہاں علی المرتضیٰ بھی تھے، جہاں بلال حبشی بھی موجود تھے، جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہی 12,000 ایمان والوں میں سیدنا ابو سفیان اور ان کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر سکینہ اتارا۔ تو جہاں ابو بکر صدیق پر سکینہ اترا، جہاں عمر فاروق پر سکینہ اترا، جہاں عثمان غنی پر سکینہ اترا، جہاں علی المرتضیٰ پر سکینہ اترا، جہاں بلال حبشی ابو ہریرہ پر اور 12,000 ایمان والوں پر اللہ رب العزت نے سکینہ نازل فرمایا، وہاں حضرت ابو سفیان اور ان کے صاحبزادے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی سکینہ نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کی نصرت کے لیے ایک غیبی لشکر بھیجا۔ تو غیبی لشکر جہاں 12,000 ایمان والوں کی نصرت کے لیے آیا، تو وہاں 12,000 ایمان والوں میں ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت کے لیے بھی آیا، اور اللہ رب العزت نے مومنین کے اندر حضرت ابو سفیان کو بھی شامل کیا، حضرت امیر معاویہ کو بھی شامل کیا، اور قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں ایمان والوں کی تعریف آئی ہے،
जहां जहां सहाबा किराम की तारीफ आई है, कहीं पर फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, कि ये सच्चे ईमान वाले लोग हैं। कहीं पर फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत याफ्ता हैं। कहीं पर फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि ये लोग कामयाब हैं। उलाइका हुमुल फाइजून, ये मर्तबा हासिल करने वाले हैं। तो जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,44,000 सहाबा किराम की मनक़बत बयान फरमाई, उन 1,44,000 सहाबा में हजरत अबू सुफियान और उनके साहिबजादे हजरत अमीर मुआविया भी शामिल हैं। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मर्तबा और मकाम अता फरमाया कि आज बाज लोग जो है उनके बारे में ज़बानें ताम दराज करते हैं, उनके बारे में तरह तरह की गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब ग़ज़वा ताइफ का मौका आया, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में अबू सुफियान और उनके साहिबजादे अमीर मुआविया जिहाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर उस जिहाद में शिरकत करते हैं। काफिरों की तरफ से तीरों की बारिश हुई। हजरत अबू सुफियान की आंख में एक तीर आकर लगा, जिसकी वजह से उनकी आंख बाहर आ गई। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथ के अंदर अपनी आंख का डेला रखकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए मेरी आंख शहीद हो गई, मेरी आंख अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू सुफियान, अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तेरी आंख को वापस लौटा देगा, और अगर तू सब्र इख्तियार करे तो इस कुर्बानी के बदले में अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ से अपनी आंख के डेले को जमीन पर फेंक दिया और कहा कि ए अल्लाह के नबी, जन्नत के बदले में मैं अपनी आंख को कुर्बान करता हूँ, अगर आंख देकर मुझे जन्नत मिलती है तो यह सौदा बड़ा सस्ता है। तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मेरे नबी ने एतमाद फरमाया कि जब ग़ज़वा हुनैन का मौका आया, 600 से ज्यादा कुफ़ार मुसलमानों के कैदी बने। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों की निगरानी, मुसलमानों मुझे अबू सुफियान पर एतमाद है, और आपने फरमाया खियारुकुम फिल इस्लामी खियारुकुम फिल जाहिलिया, कि तुम में से जो लोग ज़माना जाहिलियत के अंदर बेहतर और सरदार थे, मैं उन्हीं को ज़माना इस्लाम के अंदर भी बेहतरीन करार देता हूँ। तो बाज़ लोग अबू सुफियान और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम दुश्मनी का चर्चा करते हैं, हालांकि वो तमाम वाक़यात इस्लाम कबूल करने से पहले हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम अपने से पहले तमाम गुनाहों को मिटा देता है, और इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान ऐसा हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के बतन से पैदा हुआ। तो हजरत अबू सुफियान ने भी और उनके साहिबजादे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। एक आंख हजरत अबू सुफियान की ग़ज़वा हुनैन के अंदर शहीद हुई, और दूसरी आंख हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत में काफिरों के खिलाफ जंग करते हुए शहीद हुई। और आखिरी उम्र हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर आंखों के नाबीना होने की हालत के अंदर गुजारी, और अपनी दोनों आंखें अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि अगर अल्लाह का हुक्म आए तो हमारी आंख भी कुर्बान है और अल्लाह के रास्ते पर हमारी जान भी कुर्बान। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगुज़ीदा सहाबी भी हैं, हुजूर के बरादर निस्बती भी हैं। एक दफा आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया, क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु कातिब वही थे। उधर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती थी, और उधर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुआविया को बुलाकर लाओ, अल्लाह का कलाम मुझसे लिखवाना है। तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु कान पर कलम लगाए हुए इस हालत में हाजिर हुए कि उनके पास उनकी बहन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बैठी हुई थी। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआविया, उस वक्त तेरी क्या हालत होगी जब तुझे अल्लाह ताला खिलाफत का लिबास पहनाएंगे। हजरत उम्मुल मोमिनीन सईदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, क्या मेरा भाई हुक्मरान बनेगा? क्या मेरे भाई को अल्लाह ताला
सल्तनत अता फरमाएंगे। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, एक वक्त आएगा कि अमीर मुआविया बहुत बड़ा हुक्मरान बनेगा, बहुत बड़ी सल्तनत का हुक्मरान और अमीर होगा। हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, आप मेरे भाई के लिए दुआ फरमाएं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया हादियम महदिया वाहदि बिही। अल्लाह के नबी ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, मुआविया को हादी बना, मुआविया को महदी बना और इसके जरिए से लोगों को हिदायत अता फरमा। हादी उसको कहा जाता है जो हिदायत याफ्ता हो, जो सीधे रास्ते पर चलने वाला हो, और महदी उसको कहा जाता है कि जो लोगों को हिदायत के रास्ते पर लाए और लोगों को हिदायत के रास्ते पर चलाए। तो अल्लाह के नबी ने अमीर मुआविया को यह दुआ दी कि ए अल्लाह, इसको हादी भी बना और इसको महदी भी बना और लोगों को इसके जरिए से हिदायत अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अमीर मुआविया को हुजूर की दुआ से हादी भी बना दिया, हुजूर की दुआ से महदी भी बना दिया और लोगों का हुक्मरान भी बनाया। और एक वक्त आया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 65 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर इस्लाम की सल्तनत, इस्लाम का परचम लहराकर दुनिया को बतला दिया कि ये अमीर मुआविया जो हुजूर का गुलाम है, आप 2/3 दुनिया से ज्यादा के अंदर अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाला है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिकमा वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। ए अल्लाह, मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा, मुआविया को हिसाब का इल्म अता फरमा और इसको हिकमत अता फरमा और इसको आखिरत के अजाब से महफूज फरमा। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के उन चंद बरगुज़ीदा सहाबा में से हैं, चंद खुश नसीब सहाबा में से हैं जिनके लिए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा दुआएं फरमाई। और अमीर मुआविया के हक में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 से ज्यादा दुआएं अहादीस के अंदर मशहूर और मारूफ हैं, जिनमें से एक दुआ यह है कि ऐ अल्लाह, अमीर मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अमीर मुआविया को किताब का ऐसा इल्म अता फरमाया कि किताब, अल्लाह की किताब के माहिर बन गए, किताबुल्लाह के मुफस्सिर बन गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको किताबुल्लाह के अंदर वो महारत अता फरमाई जो बहुत कम सहाबा को हासिल थी। किताबुल्लाह को जानने वाले तमाम सहाबा थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक किताबुल्लाह का इल्म रखने वाले थे, हजरत उमर बिन खत्ताब भी किताबुल्लाह का इल्म रखने वाले थे, हजरत उस्मान गनी भी किताबुल्लाह का इल्म रखने वाले थे, हजरत अली उल मुर्तजा भी किताबुल्लाह का इल्म रखने वाले थे। लेकिन मेरे नबी ने अमीर मुआविया के लिए बाकायदा तौर पर दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, इसको किताब का इल्म अता फरमा। चुनाचे अमीर मुआविया किताबुल्लाह के मुफस्सिर थे। एक दफा ईसाइयों का एक वफद अमीर मुआविया की खिदमत में आया और आकर अर्ज किया कि अगर आप हमारे कुछ सवालात के जवाब अपनी किताब से इनायत कर दें, अगर किताबुल्लाह से हमारे सवालात के जवाब दे दें तो हम आपके का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अमीर मुआविया ने कहा कि बताओ तुम्हारे सवालात क्या हैं। उनमें से एक ईसाई कहने लगा कि उन 3 चीजों के बारे में बताओ कि जो जानदार नहीं है फिर भी उन्होंने दुनिया में कलाम किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम हुए। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल, कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा किया तो आसमानों पर और जमीन पर और पहाड़ों पर इस कायनात का बोझ डालना चाहा, तो अबैना यहमिलनहा, इन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। तो ये 3 चीजें बेजान थी, लेकिन बेजान होने के बावजूद ये हम कलाम हुई और अल्लाह ताला से इन्होंने गुफ्तगू की। तो वो ईसाई कहने लगा, सदक़ता, तूने सच कहा। अमीर मुआविया ने कहा, अपना दूसरा सवाल बताओ। वो ईसाई कहने लगा कि वो 2 चीजें कौन सी हैं जो घटती और बढ़ती रहती हैं लेकिन आंख से नजर नहीं आती। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रात और दिन को बदलते रहते हैं। कभी रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है, कभी दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है। तो ये 2 चीजें हैं जो घटती और बढ़ती रहती हैं लेकिन इसके बावजूद आंखों से नजर नहीं आती। तो ईसाई कहने लगा, सदक़ता,
अमीर मुआविया ने कहा अगला सवाल बताओ। वो कहने लगा कि वो कौन सी चीज है जो ना इंसान है, ना जिन है, ना अल्लाह का नबी है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उस पर वही नाजिल फरमाई। अमीर मुआविया ने फरमाया, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहद की मक्खी की तरफ वही फरमाई, हालांकि शहद की मक्खी ना इंसान है, ना जिन है, और ना ही अल्लाह का नबी है। ईसाई कहने लगा सदक़ता, तूने सच कहा। अमीर मुआविया ने कहा अपना अगला सवाल बताओ। वो कहने लगा वो कौन सी बेजान चीज है जिसने अल्लाह के घर का 7 दफा तवाफ किया, 7 दफा चक्कर लगाया। अमीर मुआविया ने फरमाया कि कुरान करीम के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दौरान तूफान 7 दफा अल्लाह के घर का चक्कर लगाया, तो वो बेजान होने के बावजूद उसने अल्लाह के घर का तवाफ किया। वो ईसाई कहने लगा कि उन 5 चीजों के बारे में बताओ जो मां के पेट से पैदा नहीं हुई लेकिन दुनिया के अंदर जिंदा आई। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि उनमें से एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह ताला ने बगैर मां और बाप के पैदा किया। दूसरे हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है जिनको बगैर मां और बाप के पैदा किया। तीसरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुम्बा है जो जन्नत से लाया गया और बगैर मां के पैदा हुआ। चौथे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी है जो पहाड़ से निकली थी और बगैर मां के पैदा हुई। और 5वीं चीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को जमीन पर डाला तो वो अल्लाह के हुक्म से अज़िया बन गया। ईसाई कहने लगा सदक़ता, तूने सच कहा। फिर हजरत मुआविया ने कहा कि अपना अगला सवाल बताओ। वो कहने लगा कि वो कौन सी चीज है जो जन्नत से लाई गई तो बिल्कुल रोशन और चमकदार थी, जमीन पर आकर बिल्कुल सियाह और काली हो गई। अमीर मुआविया ने कहा वो हजर अस्वद है कि जब जन्नत से फरिश्ते इसको अल्लाह के हुक्म से लेकर आए थे तो बिल्कुल रोशन और चमकदार था, लेकिन दुनिया में आकर इसने इंसानों के गुनाहों को अपने अंदर चूस लिया और उन गुनाहों की वजह से ये सियाह और काला हो गया। लेकिन जब जन्नत के अंदर दोबारा क़यामत के दिन ले जाया जाएगा तो बिल्कुल रोशन और चमकदार होगा। वो ईसाई कहने लगा सदक़ता। इस तरीके से 50 सवालात अमीर मुआविया से किए और 50 सवालात के जवाब अमीर मुआविया ने कुरान से अता किए। तो वो ईसाई कहने लगा ए मुआविया, तू किसका गुलाम है? तू मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है, तू उसका गुलाम होकर इतना इल्म रखने वाला है, तेरे पास कुरान का इतना इल्म है तो मोहम्मद मुस्तफा के इल्म की क्या हालत हो। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर ही बशारत दे दी थी कि अमीर मुआविया को अल्लाह रब्बुल इज्जत सल्तनत अता करेंगे। चुनाचे अमीर मुआविया ने 65 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर इस्लाम का परचम लहराया। मदीना से लेकर शाम तक, शाम से लेकर ईरान तक, ईरान से लेकर इराक तक, इराक से लेकर चीन तक, चीन से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक, पूरी 65 लाख मुरब्बा मील के ऊपर अमीर मुआविया ने इस्लाम का परचम लहराकर कलमा तौहीद को बुलंद करके इस बात को साबित कर दिया कि मोहम्मद का गुलाम जहां पर भी हो अल्लाह के नाम का कलमा ही बुलंद करने वाला हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबा किराम की सीरत को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों के दिलों में नऊज़ बिल्लाह हजरत अमीर मुआविया से इनाद है, उनके दिलों में हजरत अबू सुफियान से बुग़्ज़ है, उनको चाहिए कि कुरान करीम की आयात पढ़ें जहाँ पर इन सहाबा की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मनक़बत बयान फरमाई, उन अहादीस को देखें जहाँ पर हजरत अमीर मुआविया की शान बयान की गई है। और अमीर मुआविया के लिए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दुआएं की हैं। आज अगर कोई कहता है कि मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, मेरी माँ की दुआ की वजह से मुझे ये मर्तबा और मकाम मिला है, कोई कहता है मेरे उस्ताद की दुआ की वजह से मुझे ये मर्तबा और मकाम मिला है, कोई कहता है मेरे पीर की वजह से मुझे ये मर्तबा और मकाम मिला है, कोई कहता है फलां बुजुर्ग की दुआ से मुझे ये मर्तबा और मकाम मिला है। बुजुर्ग की दुआ पर अगर तुझे यकीन है तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर यकीन नहीं कि जिसने अमीर मुआविया के लिए ये दुआ की कि ऐ अल्लाह इसको किताब का इल्म अता कर, इसको हिकमत अता कर और इसको हिसाब का इल्म अता कर और इसको अजाब से बचा ले। तो जिसके लिए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दुआएं की, क्या अगर आम पीर की दुआ, आम बुजुर्ग की दुआ कबूल हो सकती है तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रायगा जाएगी? हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला हमें अपने अकीदे को सही करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।